मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव। मानसिक शक्ति छात्रों की मानसिक समस्याओं के बारे में सोचने, समझने और कुछ करने के लिए एक कार्यक्रम है। इसमें हमारा साथ देते हैं हमारे मित्र, हमारे friends, doctors, psychiatrists, psychologists, and all mental health professionals, teachers, educators, and so many people have aligned to develop this as a module where we can tell what really are the needs of students and how to maintain a good and positive mental health for students. In this connection, we conduct a webinar every month from one or the other institutions in a hybrid mode or online. Yesterday, we had it in the Department of Psychiatry at the Banaras Hindu University, Kashi. It was organized by my friend, Professor Sanjay Gupta, who is a psychiatrist. We had about 8 presentations and they were very exciting. Now I'm going to bring someone who's Dr. Amit Singh, a dedicated and one of the very few available addictionologists. That is, he's a psychiatrist plus he's further trained in science of addictions. And he works at the King George's Medical University, Lucknow, and busy in teaching, research, and seeing patients and managing the programs. He is going to tell us what is the size and cause and problem of addictions among student population, what exactly is the cause, what needs to be done, and what are the precautions to be taken. So let's hear him. I'm sure you will find interesting ideas from his presentation. So I will be talking on identification, management, and prevention of addictions in student population. So this is a brief outline of my talk. I'll be briefly talking about suicide and addiction in student population, its identification, management, and then I'll conclude. So in the context of today's presentation, like today's theme, addiction is an important component or an important factor contributing to suicide. Also, in suicide among students and adolescent population. So, studies have suggested that substance use increases the risk of suicide and suicide attempts and suicidal ideations. So, this is the finding from a meta-analysis. It suggested that uh, suicidal ideations increase around 1.86 times among the people who use alcohol in the past 1 year. Similarly, the rates for suicidal ideations also increase when a person is using cannabis to around 2.01 times. With regard to the suicide attempts, the rates increase again to around 1.5 to 2 times with respect to different substances a person is using. So it suggests that substance use definitely lead to an increase in the risk of suicidal ideations and suicide attempts. Now, talking about addiction, addiction hai kya? So it is a behavioral pattern of drug abuse which is characterized by overwhelming involvement with the use of a drug. That is compulsive use. Here also there is a tendency to relapse after discontinuation. So लोग कई बार कोई एक सब्सटेंस लेते हैं और उसके बाद जब वो छोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें उनको बहुत दिक्कत होती है. So there is a sort of compulsive use and an important component is loss of control. Often these substance users or even different kind of addiction starts with
ओकेजनल यूज, सोशल यूज एंड रेगुलरली लेते लेते एक स्टेट आता है अनकंट्रोल्ड यूज का। जब लॉस ऑफ कंट्रोल आपको देखने में मिलता है, उस समय लोग जो सब्सटेंस ले रहे हों या फिर जो लोग एडिक्शन से अफेक्टेड हों, वो अपने उस बिहेवियर को चेंज करने का प्रयास करते हैं या लिमिट करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी कोशिश के बावजूद वो कर नहीं पाते हैं। सो इस स्टेट में हम बोलते हैं कि लोग जो हैं वो एडिक्ट हो गए हैं। अगर हम बात करें एडिक्टिव सब्सटेंसेस की, तो बहुत तरह के सब्सटेंसेस हैं जो लोग डे टू डे बेसिस पर कंज्यूम करते हैं। लोग फूड भी कंज्यूम करते हैं। सो हाउ आर एडिक्टिव सब्सटेंसेस डिफरेंट? So addictive substances are those substances which when taken has the ability to change an individual's consciousness, perception, mood, thinking process, behavior और motor function. So लोगों के consciousness को, mood को, सोचने के तरीके को या उनके व्यवहार को ये substances बदलते हैं। और एक चीज जो important है कि ऐसे substances को जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो या रेगुलेट करने की कोशिश करते हो, तो वो कई बार अनसक्सेसफुल होता है। सो डिपेंडिंग ऑन केमिकल क्लास की उनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, मेन केमिकल क्या है, कई तरीके के सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो कॉमनली हम सुनते हैं या देखते हैं। उनमें अल्कोहल हो गया, ओपियोइड्स हो गया जो कि अफीम के पौधे से निकाले जाने वाले सब्सटेंसेस या उनके जैसे ही प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंसेस को बोला जाता है। कैनबिस या भांग के पौधे से निकाले जाने वाली बहुत सी चीजें जो हैं वो कैनाबिनॉइड्स होते हैं, वो भी काफी एडिक्टिव हैं। इसके अलावा कई तरीके के और ड्रग्स हैं, स्टिमुलेंट्स, जो आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रेव पार्टीज में कई बार हम सुनते हैं कि बच्चे यूज कर रहे हैं या इनके पकड़े जाने की भी हमें हमें कई बार खबर सुनने को मिलती है। फिर सिडेटिव हिप्नोटिक्स, कुछ ऐसे टैबलेट्स, मेडिसिन्स, गोलियां ऐसी होती हैं जिनको कि लोग नींद के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर उनको गलत तरीके से लिया जाए तो उनसे भी नशा होने का अ, अ, खतरा रहता है और उनपे आदी होने का भी खतरा रहता है। कुछ हेलुसिनोजेंस होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके लेने के बाद लोगों का परसेप्शन डिफरेंट होता है, अपने आसपास की चीजों को किस तरीके से वो महसूस कर रहे हैं वो बदल जाता है। एक कॉमन कंपाउंड है एलएसडी, जो कि कई सारी रेव पार्टीज में यूज भी होता है और सुनने को भी मिलता है। और बहुत कॉमनली जो सब कोई जानता है, टोबैको। सो डिपेंडिंग ऑन कि क्या केमिकल क्लास है, ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो सब्सटेंसेस है वो हमने क्लासिफाई किया है। और आज के दौर में एक एडिक्शन जो बहुत ही कॉमन है और बहुत कॉमनली एनकाउंटर करते हैं, काफी प्रॉब्लमेटिक भी है, वो है स्क्रीन एडिक्शन, जो कि मोबाइल, लैपटॉप या इस तरीके के टीवी, इनके लिए जो एडिक्शन बच्चों में होता है वो। अगर हम इंडिया में बात करें तो क्या स्थिति है? अ, तो 2019 में एक सर्वे हुआ जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्टडी कंडक्ट कराई। तो इसमें ये देखा गया कि जो 10 टू 17 इयर्स की एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनमें अल्कोहल यूज अराउंड 1.3% बच्चों में है, कैनबिस 0.9%, ओपियोइड यूज 1.8% बच्चों में और इनहेलेंट यूज 1.17% बच्चों में था। तो अगर हम इनको एब्सोल्यूट फिगर्स में कन्वर्ट करें तो ये कई लाख हो जाता है, अराउंड 50 लाख और मोर आपको मिलते हैं इंडिविजुअल सब्सटेंसेस के लिए। सो ये बहुत बड़ा फिगर है। और अगर हम टोबैको की बात करें तो ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे वो भी 2019 में हुआ था। उनने बताया कि 13 टू 15 ईयर एज ग्रुप में
टोबैको यूज जो है अराउंड 8.5% जो एडोलेसेंट हैं वो यूज कर रहे हैं, तो टोबैको यूज काफी कॉमन है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो बच्चे हैं वो भी सब्सटेंसेस से, नशे से अछूते नहीं हैं, वो भी उनसे अफेक्ट हो रहे हैं। बात ये आती है कि आखिर बच्चे यूज क्यों करते हैं। तो कॉमनली जो एक कारण होता है वो है पीयर प्रेशर। अपने जो उनके साथी हैं, दोस्त हैं, उनका अगर निगेटिव पीयर प्रेशर है तो वो जोर डालते हैं कि एक बार ट्राई करके देखो, उसके वो बेनिफिट्स बताते हैं। और फिर जो बच्चा है अगर कभी किसी स्ट्रेस में है, किसी परेशानी में है, या फिर जस्ट वैसे भी अगर बोर हो रहा है, तो मजे के लिए भी लोग बच्चे अब्यूज करते हैं। इसके अलावा कई बार उनमें ये होता है कि मैं नशा करूंगा या स्मोक करूंगा या कैनबिस लूंगा, वीड लूंगा, तो मैं बड़ा फील करूंगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ। कई बार लोग काउंसल करके उनको नशे में ले आ देते हैं। कई बार वो अपने पेरेंट्स के बिहेवियर्स को इमिटेट करते हैं कि फादर स्मोक करते हैं, टोबैको लेते हैं, तो मैं भी इसको ले सकता हूँ। वहां से भी उनका शुरुआत होता है। कई बार अपने घर की परेशानियों से जो तनाव हो रहा होता है उससे निजात पाने के लिए भी बच्चे सब्सटेंस लेते हैं। जैसे कोई फैमिली इश्यूज हैं, लो सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड इश्यूज हैं, डिप्रेशन है, या कोई और इस तरीके के इश्यूज हैं, तो भी बच्चे लेते हैं। इसके अलावा प्लेजर सीकिंग के लिए, मजे के लिए, या कई बार रिबेलियन, अपने आप को अलग सा दिखने के लिए भी बच्चे सब्सटेंसेस लेते हैं। सो जो स्टडीज बताती हैं कि 9 out of 10 people with addiction started using substances before they turned 18। मतलब 18 साल से पहले ही 10 में से 9 लोग अपना नशा शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि अर्ली इनिशिएशन ऑफ ड्रग यूज इज एसोसिएटेड विद ग्रेटर ड्रग इन्वॉल्वमेंट। तो अगर जल्दी शुरू किया है तो जो ड्रग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी लॉन्ग टर्म में वो भी ज्यादा होंगी, और जो सिवियरिटी होगी वो भी ज्यादा देखी गई है। सो अगर हम इस एज ग्रुप में इंटरवेंशन करते हैं, हम डिले करते हैं, तो बहुत संभव है कि हम सब्सटेंस यूज से होने वाली प्रॉब्लम्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द अगेन, इसी चीज को जो हमने अभी डिस्कस किया, जो ये अमेरिका का डेटा है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अधिकतर बच्चों में जो इलिसिट ड्रग यूज भी है वो अराउंड 16 to 17 या 18 to 20 की एज ग्रुप में शुरू हो जा रहा है। और इलिसिट ड्रग्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनमें कैनबिस, ओपियोइड्स, कोकेन और हार्ड ड्रग्स की भी बात हो रही है। सो ये जो एक पीरियड है जिसमें कि बच्चे स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, वो एक काफी क्रिटिकल पीरियड हो जाता है किसी भी तरीके के इंटरवेंशन के लिए या प्रिवेंशन के पर्सपेक्टिव से। फिर बात आती है कि आखिर बच्चे क्यों इतने वल्नरेबल हैं, एडोलेसेंट्स क्यों इतने वल्नरेबल हैं कंपेयर टू एडल्ट्स। सो ये देखा गया, रिसर्च ने ये साबित किया कि भाई जो बच्चों का दिमाग जब मैच्योर हो रहा होता है, तो जो सब कॉर्टिकल रीजन्स हैं जो कि इम्पल्सेस के लिए, डिजायर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो तो जल्दी मैच्योर हो जाता है। लेकिन जो उनको रेगुलेट करने के लिए जो ब्रेन के रीजन्स हैं, जो अपने डिसीजन को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रीजन है, जैसे कि फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का एक रीजन है, वो काफी देर में मैच्योर होता है। सो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर पाने में इस एज ग्रुप में बच्चों को दिक्कत होती है, और इस वजह से वो ज्यादा इंक्रीज्ड रिस्क पे रहते हैं सब्सटेंस यूज शुरू करने के, और इसके इससे अफेक्टेड होने के लिए।
अगर हम बात करें कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एडिक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, सो फैक्टर्स जो हैं वो कई सारे डोमेन्स में हो सकते हैं। मतलब वो उस बच्चे से रिलेटेड हो सकता है, उनकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, उनका जो पीयर सर्कल है, ग्रुप है, उनसे रिलेटेड हो सकता है, उनके स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, उससे अफेक्टेड हो सकता है, और जो उनका जो कम्युनिटी है, जिस समाज में वो रह रहे हैं, वो भी उनके सब्सटेंस यूज़ बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि सब्सटेंस यूज़ या एडिक्शन को इंक्रीज़ करते हैं रिस्क को, कुछ ऐसे हैं जो प्रोटेक्टिव होते हैं, जो उनके रिस्क को कम करते हैं। तो अगर हम इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स की बात करें, तो केओटिक होम एनवायरनमेंट, मतलब घर में अगर अच्छा माहौल नहीं है, तनाव है, तो ये एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। इसके अलावा इनफेक्टिव पेरेंटिंग, पेरेंटिंग स्टाइल अगर सही नहीं है, अ, बच्चे को अगर म्यूचुअल अटैचमेंट और अच्छे से नर्चरिंग नहीं की जा रही है, अ, अपने क्लासरूम में उनका बिहेवियर जो है वो इनएप्रोप्रिएट है, एग्रेसिव है, एकेडमिक फेलियर अगर हमें देखने को मिल रहा है, उनके एकेडमिक एस्पिरेशंस, मतलब अपना वो कितना अचीव करना चाहते हैं अपने करियर में, अगर वो लो हैं एस्पिरेशंस, या उनके कोपिंग स्किल्स पुअर हैं, तो ये सब इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा अगर उनके साथ जो उनके पीयर्स हैं, वो डेविएंट पीयर्स हैं, मतलब जो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हैं, तो वो एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा अगर उनकी जो पीयर ग्रुप है, या जो उनकी फैमिली कम्युनिटी है, वहाँ पे जो ड्रग यूज़ है, उसको अगर उसके लिए सैंक्शंस नहीं हैं, अगर उनको अप्रूवल मिल जाता है उसके लिए, लोग उनको अलाउ करते हैं, तो ऐसे बच्चों में सब्सटेंस यूज़ शुरू होने का और आगे उनके एडिक्टेड होने का रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। और अगर किसी पेरेंट में सब्सटेंस यूज़ की हिस्ट्री है या कोई मेंटल इलनेस की हिस्ट्री है, तो ये भी देखा गया है कि एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर हो सकता है। अगर हम प्रोटेक्टिव फैक्टर्स की बात करें, तो स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स, घर में अगर अच्छा बॉन्डिंग है, उनको अच्छा सपोर्ट मिलता है, अगर पेरेंट्स एंगेज्ड हैं बच्चे की लाइफ में, अगर पेरेंट्स जो हैं उनके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन है, और एकेडमिकली अगर बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और उसको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो ये सब सारे अच्छे सारे जो हैं प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं। ये बच्चे को आगे एडिक्टेड होने से या सब्सटेंस से एक्सपोज होने से रोकने में मदद करते हैं। इसके अलावा उनकी बॉन्डिंग जो है वो प्रो सोशल इंस्टीट्यूशंस, मतलब स्कूल में वो अपने कितना अच्छे से इन्वॉल्व्ड हैं एक्टिविटीज़ में, अपने कम्युनिटी में कितनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। बिसाइड्स वो अपने नॉर्म्स को कितना फॉलो करते हैं, और जो कम्युनिटी का नॉर्म है वो ड्रग के लिए या अल्कोहल के लिए कैसा है। अगर वो रिजिड हैं, वहाँ पे उनको अच्छे से नहीं देखा जाता है, तो ये चीज़ें जो हैं बच्चे को आगे रोकती हैं किसी भी नशे को ट्राई करने से। नाउ व्हाट आर द हाईएस्ट रिस्क पीरियड्स फॉर ड्रग अब्यूज अमॉन्ग यूथ? रिस्क पीरियड जो है वो बच्चों में कौन-सा होता है? तो अगर हम इसकी बात करें, तो कोई भी मेजर ट्रांजिशन इन द लाइव्स, जब भी कोई जीवन में बड़े ट्रांजिशंस होते हैं, तो वो एक रिस्की टाइम पीरियड होता है, जबकि स्टूडेंट या एडोलेसेंट जो है वो सब्सटेंस यूज़ से एक्सपोज़ होता है। तो ऐसा कब हो सकता है? सो व्हेन दे चेंज स्कूल, और व्हेन दे एंटर सम हाई स्कूल, किसी क्लास में प्रमोट हो रहे हैं, या इफ दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द होम फॉर द फर्स्ट टाइम, or when the young adult enters the workforce or have some affairs, कोई जीवन में उनके कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति आया, कोई लव अफेयर हुआ, या इस तरीके का अफेयर्स हुए, तो ये सब चीजें जो हैं मेजर ट्रांजिशंस हैं, जिनमें कि हाईएस्ट जो रिस्क होता है सब्सटेंस यूज के लिए या एडिक्शन में जाने का, वो थोड़ा ज्यादा रहता है। तो ऐसे समय में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत ज्यादा होती है।
यहाँ पे कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि कई सारे सब्सटेंसेस हमने सुने हैं, उनमें से कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो लीगल हैं, जैसे कि टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, ये लीगली अवेलेबल है, वो आपको हर जगह मिल जाता है। कई सारे सब्सटेंसेस हैं जो इल्लीगल हैं, जैसे कि हेरोइन, कोकेन। अ, लोगों का आमतौर पे मानना होता है कि जो इल्लीगल ड्रग्स हैं वो ज़्यादा हार्ड हैं, वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हैं। लेकिन स्टडीज़ ये बताती हैं, जैसे हम ये देख सकते हैं कि टोबैको जो कि हम काफ़ी कॉमनली ये आमतौर पे ये मानते हैं कि साधारण सा ड्रग है, लेकिन इसके लिए भी एडिक्शन का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट सब जो बाकी हार्ड ड्रग्स हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा है। तो ये एक स्टडी है, इसमें देखा गया कि अगर 100 लोग कोई नशा ट्राई करते हैं, तो उनमें से कितने लोग एडिक्टेड हो जाएँगे, ये जो रिस्क है टोबैको के लिए सबसे ज़्यादा है। तो आउट ऑफ 100 ऑलमोस्ट 32 पीपल बिकेम एडिक्टेड टू टोबैको इन दिस स्टडी। एंड जो हेरोइन या कोकेन है, उसका रिस्क इससे कम था। अल्कोहल और कैनबिस का रिस्क जो था वो उससे भी कम था। तो जो सिंपल जिन सब्सटेंसेस को या जिन ड्रग्स को हम सिंपल समझते हैं, उनको उनके अपने कई सारे नुकसान हैं। एक बड़ा नुकसान ये है कि ये कई बार गेटवे की तरह काम करते हैं। मतलब जब आप इन लीगल सब्सटेंसेस से शुरू करते हो, जैसे टोबैको या अल्कोहल के साथ, तो आगे इल्लीगल सब्सटेंसेस के यूज़ का जो रिस्क होता है, वो देखा गया है कि ऐसे लोगों में ज़्यादा होता है, ऐसे बच्चों में ज़्यादा होता है। सो यहाँ से हमें एक चीज़ ये समझने को मिलती है कि अगर आपने बच्चे को टोबैको, अल्कोहल इनसे इंट्रोडक्शन जो हो रहा है, वो आपने डिले कराया या नहीं होने दिया, तो बहुत संभव है कि आगे उनका जो है किसी भी और हार्ड ड्रग से इंट्रोडक्शन जो है हो, वो ना हो। हमारे यहाँ